اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، سفیر حوزہ کے 7ویں پروگرام کے ساتھ مولانا وسیم عباس صاحب کی نیابت میں سخاوت حسین سندرالوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو میں مسنون طریقے پہ چلتے ہوئے آپ تمام حضرات و خواتین کو سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی آج کے یوم ولادت حضرت علی اکبر علیہ السلام ہم شکل پیغمبر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج المہدی ٹی وی کے نیو جرسی اسٹوڈیو میں سفیر حوزہ کے 7ویں پروگرام میں حجت الاسلام جناب مولانا سید ضمیر الحسن رضوی صاحب تشریف فرما ہیں، جو انچارج ہیں جامعہ جوادیہ بنارس انڈیا کے، جو حوزہ علمیہ قم کے فارغ التحصیل ہیں، اور اس وقت بر صغیر میں بلکہ دنیا اردو میں خطباء میں جو پڑھے لکھے خطباء ہیں ان میں درجہ اول کے خطباء میں شامل ہیں۔ جناب مولانا ضمیر الحسن رضوی صاحب ہمارے دوست، ہمارے بھائی حضرت آیت اللہ سید شمیم الحسن رضوی صاحب قبلہ کے فرزند ارجمند ہیں، اور ہم سب کے بزرگ آیت اللہ سید ظفر الحسن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں۔ ان کے چچا حجت الاسلام والمسلمین مولانا ولی الحسن رضوی اس وقت قم اور تہران میں خدمات دینی انجام دے رہے، اور مولانا ماشاءاللہ جامعہ جوادیہ بنارس میں ایک مدرس کے طور پر، منبر حسینی پر ایک کامیاب خطیب کے طور پر، اور اسلام کی تبلیغ کی بابت پوری دنیا میں ایک مبلغ اسلامی کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ میں جناب مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ مزید اپنا تعارف المہدی ٹی وی کے ناظرین و ناظرات کے لیے کرائیں۔ ان کے ساتھ ہی دائیں جانب ہمارے المہدی ٹی وی کے روح رواں جناب الحاج سید ماجد حسین موسوی نعرے والے آغا بھی تشریف فرما ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ سب سے پہلے ہدیہ سلام ناظرین کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ اس وقت مجھے نہایت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اس وقت المہدی کے اس اسٹوڈیو میں موجود ہوں، اور الحمدللہ یہاں کے اس ادارے کی فعالیت اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد دل باغ باغ ہو گیا۔ اور سب سے بڑی خوش بختی اس وقت یہ ہے کہ میں اپنے درمیان اس وقت ایک استاد عالی مرتبت حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سخاوت حسین سندرالوی صاحب کو، کہ جس وقت میں حوزہ علمیہ قم میں زیر تعلیم تھا اس وقت سے جانتا ہوں کہ اس وقت ہمارے استاد محترم بحمداللہ بہت ہی معروف استاد میں اور ممتاز اساتذہ میں شمار ہوتے تھے، اور آپ کے تحت تعلیم تمام طلاب ایرانی، غیر ایرانی میں ہندوستانی، بنگلہ دیشی، ترکیہ، افریقہ، مختلف ممالک کے بچے آپ سے کسب تحصیل کر چکے ہیں، اور یہ ایک عظیم مقدر کو بہتر کہوں تھا کہ میں استاد محترم سے اس وقت بیٹھ کر کے کچھ گفتگو کرتا، اور مگر اس کے برعکس استاد محترم نے مجھے اپنی نوازوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے انہوں نے چاہا کہ میں اس ادارے میں آ کر کے اور آپ لوگوں سے کچھ ہم خطاب کر سکوں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میں حوزہ علمیہ جوادیہ میں 1997 میں
آیا اور اس وقت سے آج تک وہاں مشغول ہوں. مدرسے میں جتنے طلاب کے معاملات ہیں، داخلہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ان کو دیکھنا، نصاب تعلیم کو مرتب کرنا، اساتذہ کے حوالے کتابوں کو کرنا. اس وقت بحمداللہ 12 اساتذہ جامعہ جوادیہ میں مشغول ہیں جو تعلیم دے رہے ہیں، اور بحمداللہ ایک عظیم جامعہ ہے. سن 1928 سے یہ فعال ہے، جو ہندوستان کے اندر بزرگ مدارس میں سے شمار کیا جاتا ہے. حوزہ علمیہ جوادیہ، اگرچہ اس کا نام جامع العلوم جوادیہ عربی کالج بنارس ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اس حوزے کو یوں سمجھیں کہ اگر دیکھا جائے ممالک کے اندر، تو اس جامعہ کے فارغ طلاب مثلا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سعید اختر صاحب قبلہ مرحوم، مولانا کرار حسین صاحب قبلہ وائس، مولانا فیاض حسین صاحب قبلہ ولید پوری، مولانا عباس ارشاد صاحب، مولانا ارشاد حسین صاحب، اس طریقے کے بہترین نامور افراد اس جامعہ جوادیہ سے متعلق رہے ہیں اور وہ وہاں سے فارغ ہوتے رہے. آج بھی بحمداللہ آپ اگر ہندوستان کی سرزمین کے اوپر فقط دیکھیں، دہلی ہو، بمبئی ہو، حیدرآباد ہو یا دیگر جتنے بھی شہر ہیں، تقریباً زیادہ تر ہمارے مدرسے کے فارغ طلاب بحمداللہ فعال ہیں اور کام کر رہے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم اس مدرسے کے اوپر اپنی عنایتیں رکھی ہیں. اس جامعہ جوادیہ کو اگرچہ بنیاد رکھی تھی حجت الاسلام مولانا سجاد صاحب قبلہ نے، لیکن ان کے 2 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد پہلے پرنسپل مولانا ملا محمد یوسف صاحب قبلہ قرار پائے. اس کے بعد دوسرے پرنسپل مولانا محمد رضی صاحب قبلہ، جو صاحب تفسیر ہیں، تفسیر رضی 6 جلدوں میں جن کی مشہور و معروف ہے، اور آپ کی بہترین کتابیں وعطشاہ اور اسی طریقے سے اسلام کا معاشی نظام اور دیگر کتابیں بھی آپ کی جو شائع ہو چکی ہیں اور بہت مقبول رہی ہیں. آپ نے خدمات انجام دی. پھر اس کے بعد سن 1935 میں ہمارے جد امجد حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ سید ظفر الحسن صاحب قبلہ تواصرات تشریف لے آئے، اور اس وقت سے انہوں نے اپنے ذمے اس حوزے کو لیا. جس کی کچی دیواریں تھیں ان کو آپ نے رفتہ رفتہ لوگوں سے اعانت حاصل کر کے الحمدللہ اس جامعے کو ایک فروغ دیا. اور پھر اس کے بعد میرے والد علام حجت الاسلام مولانا سید شمیم الحسن صاحب قبلہ، جو اس وقت موجودہ پرنسپل بھی ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تقریباً 35 برس کہا جا سکتا ہے کہ ان کے خدمات کو اس وقت ہو چکے ہیں، جو وہاں پر انجام دے رہے ہیں. خدا ان کو طول عمر اور صحت عطا فرمائے. ان کی نگرانی میں میں بھی اس وقت وہاں پر فعال ہوں. یہ حوزہ علمیہ جوادیہ 40 طلبہ اس وقت زیر تعلیم ہے، جبکہ اس وقت ہندوستان کے اندر اکثر شہروں میں مدارس قائم ہو چکے ہیں اور اکثر شہروں میں 2-2 3-3 مدرسے فعال ہیں. ایسے صورت میں طلاب کے کمی وغیرہ کے باوجود جو ممکن خدمات ہو سکتی ہیں وہ کی جا رہی ہیں. یہ تو مدرسے کی خدمات ہیں کہ جس میں رسائل و مکاسب تک مختصر تعلیم دی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ مدرسے کے دیگر امور بھی ہیں. مثلا ایک رسالہ جامعہ جوادیہ سے نکلتا ہے جس کا نام ہے الجواد، جو سن 1950 میں قائم ہوا، اور بحمداللہ اس وقت سے آج تک اس کی کوئی اشاعت ناغہ نہیں ہوئی ہے. تاخیر ضرور ہوئی ہے لیکن اشاعت میں کوئی ناغہ نہیں ہوا ہے. ایک مختصر سا تعارف یہ جامعہ جوادیہ کا تھا کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اس کے بعد اگر کوئی سوال ہو تو میں انشاءاللہ حاضر. بہت شکریہ. ناظرین و ناظرات، یہ پروگرام سفیر حوزہ کے نام پر 7واں پروگرام ہے. اس سے قبل 6 پروگرام ہو چکے ہیں، اور آج المہدی ٹی وی کے نیو جرسی اسٹوڈیو میں جناب مولانا ضمیر الحسن رضوی صاحب تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے. ماشاء اللہ بہت خدمات ہیں ان کے، پورے سلامت رہیں. بہت ان کی خدمات ہیں پورے خاندان کی. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ قم میں طالب علم تھے تو آیت اللہ ظفر الحسن صاحب قبلہ کی مجلس میں نے ہی پڑھی تھی. تو ماشاءاللہ میری ان کے ساتھ بڑی
ख़ानदानी वाबस्तगी भी है और इनकी खिदमत, इनके ख़ानदान की खिदमत कम नहीं है। इन्होंने बड़ा काम किया है और मैं आयतुल्लाह सैयद शमीमुल हसन रिजवी साहब की वजह से बेहद मुतासिर हूँ। हमारे वो बरदर बुज़ुर्ग हैं, उनकी बड़ी खिदमत हैं, बड़े खुलूस से इन सादात किराम ने वहाँ खिदमत अंजाम दी। और मौलाना ज़मीरुल हसन साहब का एक और तारुफ ये है, न ये फ़कत काबिल तरीन तलबा में थे बल्कि ये बहुत ज़बरदस्त शायर भी थे। न मालूम आप ये शायरी करते हैं कि नहीं, बहुत ज़बरदस्त शायरी थी इनकी। और जब ये हमारी महफ़िल होती थी तो माशाल्लाह उमूमन ये महफ़िल को लूट लिया करते थे। अब नहीं मालूम ये इस वक्त शायरी फरमाते हैं, ये शायरी अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये सिलसिला है तो ज़रूर, ये सिलसिला है तो ज़रूर उस्ताद मोहतरम, लेकिन असल में मसला ये है कि अब शायरी के उन्वान से हम लोग अपने को नहीं मुतारफ़ कराए हुए हैं। ये शायरी तो सिर्फ अपने एक फ़न है जिसकी बुनियाद के ऊपर इसे बरकरार रखे हुए हैं। और लेकिन सिलसिला बहरहाल है, मुख्तसर ये कि ख़ानदानी विरासत भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जद्द अमजद भी शायर थे, वालिद अल्लाम भी शायरी करते हैं। हमारे खानवादे में हमारे सारे चचा अल्हम्दुलिल्लाह शायर हैं, हमारे भाई हजरात वो भी बेहतरीन शायर हैं। और हमारे अल्लाह का करम हमारे खानवादे पे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस खानवादे में इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारे अपने 3 भाई मुअम्मम हैं जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और अभी इस वक्त हौज़ा इल्मिया नजफ़ में हमारे छोटे भाई मौलाना वसीम साहब हैं, अभी कुम से फारिग होकर के तशरीफ़ लाए हुए हैं। मौलाना नदीम असगर साहब जो हमारे छोटे भाई हैं, ये भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये सब भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। उसके अलावा हमारे जज़्ज़ात भाई वो भी हौज़ा इल्मिया के अज़ीम तलबा में से हैं। इस वक्त बनारस व बम्बई शहर में खोजा मस्जिद जो आम तरीन मस्जिद है, वहाँ पर मेरे जज़्ज़ात भाई मुज्जतुल इस्लाम मौलाना रूह ज़फ़र साहब इस वक्त इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और एक बड़ी कमेटी है कि जिसको वो संभाले हुए हैं और अक्सर विन चैनल के ऊपर उनके प्रोग्राम भी आते रहते हैं। ये सारी चीज़ें अल्लाह के का करम है, तो उसकी रहमत है, इनायत है कि जो हासिल है। नाज़रीन नाज़रात, अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है 848 999 2263। आप मुझसे कोई सवाल करना चाहें या मौलाना से या माजिद आगा से तो हम तीनों आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जब तक कॉल नहीं आती तो मैं मौलाना से दोबारा अर्ज़ करूँगा कि वो अपने जो खिदमात दीनी हैं उनमें अल-जवाद के बारे में, कि अल-जवाद जो मैगज़ीन है जो बर्र सग़ीर के तकरीबन दर्जा अव्वल के रिसालों में से है। मुझे भी याद है, मैं बचपन से ही अल-जवाद का कारी था। एक इस्लाह निकलता था खजवा से और एक अल-जवाद निकलता था। इन 2 रिसालों को मैंने बचपन से पढ़ा है। मेरे वालिद साहब किबला की जो लाइब्रेरी थी उसमें ये बाकायदा हमारे गांव में ये रिसाले आते थे। और मैं समझ लीजिए कि कम से कम ये कह सकता हूँ कि 4 साढ़े 4 डेकेड्स से इसका बाकायदा कारी हूँ इस मैगज़ीन का। अभी भी मेरे कुछ मज़ामीन भी कभी कभी मौलाना शौकत हुसैन सनरालवी साहब मेरे इब्ने अम्मा भेज देते हैं। मेरे फूफीज़ाद भाई हैं, वो मौलाना के भी दोस्त हैं, वो भेज देते हैं। और हमारे यहाँ आज गुजारिश की है मौलाना से कि इंशाअल्लाह अल-महदी जंतरी के लिए भी मज़मून ये तहरीर फरमाएँ। इनकी तहरीर भी बड़ी अच्छी है। अलबत्ता ये मैं बता दूं कि अगर आप अल-जवाद में उमूमन ये हमारे शिकागो में जो मवालियान हैदर करार हैं, अहले हैदराबाद, इन्होंने मुझे बताया बहुत सारे बच्चे जो उर्दू नहीं पढ़ते तो वो मेरे लिए बाकायदा मुहर्रम में पूरे साल का कलेक्शन ले आते हैं अल-जवाद का। कहते हैं कि आगा साहब आप पढ़ लीजिए। तो उसमें मैं देखता हूँ कि मौलाना मोहतरम के पूरे इदारी लिखे हुए इनके हाथ के, अगरचे अपना नाम नहीं बताते, उसमें नाम नहीं जिक्र करते, मगर बहरहाल बेहतरीन ये एडिटर भी हैं, बेहतरीन सहाफ़ी भी हैं, बेहतरीन कातिब भी हैं, बेहतरीन ख़तीब भी हैं, बेहतरीन मुदर्रिस भी हैं, बेहतरीन मुक़र्रिर हैं, बेहतरीन मुबल्लिग़ हैं। मैं बेहद खुश हूँ इनको यहाँ देख कर। बल्कि मैं अपने तमाम भाई बहनों से गुजारिश करूँगा कि मौलाना मोहतरम से इस्तिफ़ादा कीजिए। ऐसे उलमा बहुत कम मिलते हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह सिंसियरिटी के साथ, खुलूस के साथ हौज़ा इल्मिया में पढ़ने के बाद फिर हौज़ा इल्मिया में खिदमत भी करें और साथ में दीन की तबलीग और तरवीज भी करें। अभी माशाल्लाह इदारे जाफरिया में पढ़ के आ रहे हैं, जाफरिया सेंटर कनेक्टिकट में पढ़ के आ रहे हैं। कल इन्होंने आस्ताना ज़हरा में
تقریر کی ہے اور آج ماشاءاللہ المہدی ٹی وی میں یہ تشریف فرما ہے. میں جب تک کال نہیں آتی میں مزید گزارش کروں گا کہ مولانا کچھ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں، کچھ آیت اللہ سید ظفر الحسن صاحب قبلہ کے بارے میں، کیونکہ میں نے ان کے بارے میں بہت سنا ہے اور بہت زیادہ کرامات جو ان کی تھی ان کے بارے میں میں نے سنا ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے ان کے لیے مجلس پڑھی تھی تو اس میں نے کوئی 8-10 کرامات کا بھی ذکر کیا تھا جو قبلہ کے بارے میں تھی. تو کچھ اور ارشاد فرمائیں. جی عرض کروں کہ یہ ادارہ الجواد جو ہے رسالہ ہمارا نکلتا ہے ماہنامہ، ہر مہینے پابندی سے شائع ہو رہا ہے. اس میں اہل قلم حضرات اپنے کاوشیں بھی 1 منٹ ہولڈ کر لیجئے، ابھی آپ سے بات کریں گے. ارسال کرتے رہتے ہیں اور وہ اس میں ارشاد اس میں ایک رسالے کی کوشش یہ کی گئی کہ ادبی بھی رہے، ثقافتی بھی ہو اور دینیات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. لہذا یہ کام مستقل ہو رہا ہے، انجام دیا جا رہا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے طلباء جو ہمارے مدرسے میں ہیں السلام علیکم معیار بنایا جائے اور ان کو اگر آپ السلام علیکم. ایک کال لے لیتے ہیں. جی لے لیں. وعلیکم السلام. قبلہ میں علی رضا بات کر رہا ہوں. ایکچولی وہ میرے کو کسی اور پرپز کے لیے آپ سے بات کرنی تھی، رجائنا سے بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک تو ہے، میں آپ کو پھر دوبارہ کال کر لوں گا، آپ نے مجھے نمبر دینا تھا. ٹھیک ہے. میں اس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں لائیو. اچھا وہ آپ کی کال آ گئی. اس وقت لائیو پروگرام ہو رہا ہے ہمارا اور ہمارے محترم ایک عالم دین بہت ہی زبردست جو بڑے متبحر عالم ہیں انڈیا کے، یہ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. اتفاق سے میں نے ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے آپ کے لیے پوچھا تھا ان سے کہ محرم آپ کے ہاں وہ خدمت انجام دیں. تو مولانا ضمیر الحسن رضوی صاحب یہ انچارج ہیں جامعہ حوزہ علمیہ جوادیہ بنارس انڈیا کے. تو آپ کوئی اگر سوال کرنا چاہیں تو مولانا بھی موجود ہیں، میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ماجد آغا بھی موجود ہیں. کوئی سوال اگر حوزے کے بارے میں ہو پھر انشاءاللہ میں آپ کے لیے دوسری خدمت کے لیے حاضر ہوں. انشاءاللہ مغرب کے بعد آپ سے میں بات کر لوں گا. انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی میں صرف یہ معلوم چاہوں گا کہ کائنڈلی آپ تھوڑا امام زمانہ کے جشن کے دن ہے تو نئی علامات جو ظاہر ہوئی ہیں جی جی امام زمانہ کے ظہور کے سلسلے میں، ہولڈ کریں، ابھی بات کریں گے، ہولڈ کریں. نئی ڈیولپمنٹ خاص طور پر سیریا میں ہوئی ہے، عراق میں ہوئی ہے، پاکستان میں اور مختلف دنیا کے علاقوں میں، جی 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 اس کے بارے میں اگر کچھ قبلہ اور آپ روشنی ڈالیں تو بہت خوب ہوگا. اس کے لیے علی رضا ایسا کیجئے گا، آپ ذرا almahdi.tv.com آن کریں تو انشاءاللہ میں 7 بجے بشرط زندگی امام زمانہ علیہ السلام پہ ہی ایک پروگرام کرنے جا رہا ہوں. اس میں شعبان کے اعمال بھی عرض کروں گا جی جی تو وہ بہت مناسب رہے گا. آپ انشاءاللہ ٹھیک 7 بجے لاگ ان ہو جائیں اور دوستوں کو بھی بتائیں تو اس میں آپ کے سوال کا جواب بھی عرض کر دوں گا اور انشاءاللہ آپ کے لیے عالم کا اہتمام ہوگا. اطمینان رکھیے، مغرب کے بعد آپ سے بات بھی ہو جائے گی. بہت شکریہ آپ نے کال فرمائی. علی رضا رجائنا کینیڈا سے ہمیں کال کی ہے انہوں نے. بہت شکریہ. سب کو سلام عرض کریں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام سسٹر. ماشاء اللہ یہ آپ کا جو پروگرام تصویر حوضہ جی جی اچھا آ رہا ہے اور آپ کے جو مہمان ہیں جی مولانا ضمیر الحسن، جی جی میں نے ان کو ادارہ جعفریہ میں اس دن سنا ہے. اچھا، ماشاءاللہ بہت اچھی بہت اچھی انہوں بات نے تقریر کی تھی. الحمدللہ. جی تو یہ پاکستان سے آئے ہیں؟ یہ انڈیا سے آئے ہیں، بنارس. اچھا اچھا جی جی اچھا اچھا. تو اور یہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ شاعر بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں. جی 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 اگر یہ امام علی رضا کے لیے اگر کچھ لکھا یا تو وہ سنا دیں گے. اصل میں آج جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ میں انہیں مجبور کر کے لایا ہوں، ان کی بڑی مہربانی ہے. یہ تیار نہیں ہے ورنہ یہ بہت بڑے شاعر ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ قم میں تھے تو محفل یہ لوٹ لیتے تھے اور انشاءاللہ ابھی ہیں یہاں پر. کل میں کوشش کروں گا کہ ان کو ذرا گزارش کروں کہ تیار ہو کے تھوڑا اپنا کلام بھی سنائیں اور انشاءاللہ ضرور بہن آپ کی فرمائش پوری کریں گے. اور آپ کی دوسری فرمائش بھی پوری ہے. آپ کے بھائی ماجد آغا بھی لائن پہ ہیں، آپ ان کو بہت چاہتی ہیں کہ آپ کے بھائی نظر آئیں اسکرین پہ. تو اس وقت ماشاءاللہ نعرے والا آغا ہے ان کے بغیر. نعرے والے آغا، ہاں نعرے والے آغا کو ذرا زوم ان کر کے دکھائیے ذرا. نہیں ہے نعرے والا آغا تو نعرہ حیدری گانے والوں نے سنے ہیں وہ تو
लगा देंगे तो बहुत अच्छा बिस्मिल्लाह लगेगा। बिस्मिल्लाह अभी लगाएंगे अभी लगाएंगे। रहीम। नारे तकबीर, अल्लाह अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या या अली, नारे कैबरी या अली, नारे सफदरी या अली, या अली, दम दम अली अली, दम दम अली अली, हम दम अली अली, हर दम अली अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अल मेहदी टीवी टीम जिंदाबाद। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मौला अच्छा रखे। जिस वक्त भी बोले तो मैं टीवी पे हूँ, आप लोगों से अली अली कहते रहिए। जी मेरे क़ारा भी ये फरमा रही थी। असल में उस्ताद मामला ये है कि शायरी जो है वो आप जानते हैं कि एक हम उलमा के शान के तकरीबन मुनाफी है, लेकिन बहरहाल क्योंकि अहले बैत अताहरा अलैहिस्सलाम की मिदहत हमारा एक ईमानी फरीज़ा है, इस बुनियाद के ऊपर हम करते रहते हैं। और बुखार ने पूछा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़, बेशक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ भी कलाम लिखा है, दीगर अइम्मा से मुताल्लिक़ भी कलाम है हमारे पास, लेकिन मैं बउनवान शायर क्योंकि अपने को मुतारफ़ नहीं करा सका हूँ और न कराना चाहता हूँ, बस सिर्फ ये लिखता हूँ इस बुनियाद के ऊपर कि सवाब मुझे मिलता रहे, क्योंकि मन काला फ़ीना बैतन, इस बुनियाद के ऊपर मैं उस हदीस की बुनियाद के ऊपर अमल करते हुए चाहता हूँ कि ये आखिरत के लिए ज़ख़ीरा इंशाअल्लाह रहे। मैं गुजारिश कर रहा था अलजवाद से मुताल्लिक़, तो रिसाले अलजवाद में आपकी दुआ से मुसलसल मज़ामीन लोगों के आ रहे हैं और शाया हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अशार वगैरह जो आते हैं वो अगर बहर वगैरह से गिरे होते हैं तो उनको दुरुस्त भी करना होता है। अलबत्ता ये इतना हक एक मुदीर को हुआ करता है कि वो ये काम करे। बहरहाल लेकिन हम उन लोगों के शुक्रगुजार हैं कि जो ये अपने तहरीरें या अशार की सूरत में या नसर की सूरत में भेजा करते हैं। हमारे ख़ुद इस अमेरिका में जनाब बहुत से ऐसे कलमकार हैं कि जो अपने मज़ामीन भेजते हैं, जैसे मोहम्मद यार खान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उनका मज़मून अक्सर व बेशतर शाया होता रहता है, और आपका मज़मून भी हमारे रसाले में मुसलसल शाया हुआ है और जाता रहता है। और जो हज़रात भी अगर लिखते हों तो भेजें, मैं इंशाअल्लाह उसमें शाया करता रहूँगा। ये अलजवाद कौम की खिदमत, दीनी खिदमत करता है, दीनी खिदमत करता रहेगा, अगरचे इसके इशाअत में ये हज़ीना बहुत खर्च होता है और जो महसूल आता है वो बहुत कम होता है, लेकिन उसके बावजूद इसको इसलिए नहीं रोका जाता कि दीन की खिदमत है, लिहाजा होती रहे, किसी सूरत ये जारी रखा जाए। मेंबरान इसके जो ख़रीदार हैं अक्सर ऐसे हैं कि जो 4-4 साल 5-5 साल हो गए और उन्होंने उसका सालाना चंदा जो होता है वो नहीं भेजा, लेकिन उसके बावजूद हमने रिसाला रोका नहीं, हम रिसाला भेजते रहते हैं। जब उन्हें तौफीक होती है तो वो भेज भी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके शुक्रगुजार हैं। ये रिसाला अलजवाद जामे जवदिया की एक शनाख्त भी है, एक पहचान भी है इंशाअल्लाह। एक कॉल हम ले लेते हैं। पहले तो मैं आबदा बहन का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बताया कि इदारे जाफरिया में उन्होंने मौलाना की मजलिस सुनी थी और वो बड़ी इम्प्रेस हुई। अल्लाह ताला आबदा बहन की तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए इंशाअल्लाह। एक और कॉल है हमारे साथ, एक और कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी बहन कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। पहले से तबीयत अभी काफ़ी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हर दुख तकलीफ से आपको मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में बचाएगा, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ख़ास सदक़े से। आज हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन भी है, इसलिए मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ और आपके लिए दुआ जी। आप सबको भी बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला हमारे लिए खैर व बरकत का इलाही आमीन सबब बनाए। और मेरे एक सवाल है जी कि मौलाना साहब से, मौलाना मेरे साहब से जी कि हम सारी दुनिया के अंदर इतना शियान अली का कत्ल हो रहा है, आप उलमाए दीन इतनी हेलो जी जी फरमाएं। सुन रहे हैं इतनी दीन की खिदमत कर रहे हैं, इतनी अच्छी आपकी तकरीरें होती हैं, इतना मतलब इंसान अगर उसको दिल के साथ सुने तो उसका दिल वहीं पे खत्म हो जाए। मेरा सवाल ये कि इतनी दीन की खिदमत करने के बावजूद इतने शियान अली सारी दुनिया के अंदर कत्ल गारत भरी हो रही है, तो ये इनके दिलों के ऊपर असर क्यों नहीं होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ख़ार मसला सिर्फ इतना सा है
کہ یہ امت بحمداللہ اسی عنوان سے پھلی ہے اور بڑھی ہے. دیکھیں جو درخت کا تربیت اس کی جاتی ہے وہی پھلتا اور بڑھتا رہتا ہے. یہ دشمنان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چاہتے کہ یہ قوم پھلے آگے بڑھے ترقی کرے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے یہ مشن 1400 برس سے آج تک کہیں کمزور نہیں ہوا ہے. یہ امتحانات ہیں اور یہ ہمارے لیے سعادت ہے, اس لیے کہ ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں جہاں شہادت کو سعادت سمجھا گیا ہے. اب آپ نے جو سوال کیا کہ ہم اتنی تقریریں ہوتی ہیں اور اتنی چیزیں بیان کی جاتی ہیں اس کے باوجود لوگوں کے اوپر اثر نہیں ہوتا, تو اس کا ایک جواب میں مختصر سا یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس بات کو تو خود مولا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے, میں تو فرزند رسول ہوں, میرے کلمات میرے خطبات وہ تمہارے اوپر اثر انداز نہیں ہو پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں. تو اگر انسان اپنے آذوقے پہ, اگر انسان اپنے کھانے کے اوپر, اپنی کمائی کے اوپر نظر کر لے تو اسے محسوس ہو جائے گا کہ اگر ہماری پاکیزہ غذا ہے تو روح پہ کلمات کا اثر ہوگا, اگر پاکیزہ غذا نہیں ہے تو اثر نہیں ہوگا. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ کام زیادہ سے زیادہ. بہت شکریہ فاطمہ بہن ہمارے ساتھ ٹورنٹو سے شامل ہوئیں آج کے سفیر حوضہ کے 7ویں پروگرام میں. انشاءاللہ ان کے سوال کا جواب مزید عرض کیا جائے گا. ابھی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm calling from Toronto, Canada. Yes. My name is Akil. Go ahead. How are you? Alhamdulillah, I'm fine, mashallah. So I wanted to ask, is there an age limit for enrolling in the Hawza? Oh, very good question, Haji Akil. Thank you very much for calling us from Toronto. There is no age limit for the education of Hawza. MashaAllah. There is no limit at all. Even you can be student along with your dad, no problem. And I was the witness. Once I was 23 years old and my students were 63 years old. MashaAllah. So there is no limit of that at all. And if you want to admit in Hawza, you are more than welcome. You can contact us off the line and we will make arrangement for you. MashaAllah. Anything else I or Maulana Zamir Hasan can serve for you? Is there studies available for ladies? Yes, why not? You can go along with your wife when you married. Yes, no problem. And also you can get this knowledge online. We have online courses. Al-Mahdi Seminary is offering online courses as well. Thank you, Akil, for calling us. May Allah bless you and take care of yourself. Maulana Sajjad Hussain Abu Zar. Okay, say my salam to him. Thank you. May God bless you. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بات کر رہا ہوں. جی جناب, کیسے مزاج ہے؟ بہت شکر لگا سر. کون صاحب بول رہے ہیں؟ عمر بات کر رہا ہوں. عمر صاحب جی فرمائیے. کب پروگرام دیکھا تو یہ مولانا طبیعت ہے کافی سے یعنی کرنے کے لگا. جی تو میرے اصل میں 2 سوالات ہیں. ایک تو تجسس بھی ہے اور یہ نئے حالات کے حوالے سے بھی یعنی کہ پھر سوال ہے یہ کہ یعنی جس طرح پاکستان میں یعنی کہ رہتے ہیں شیعہ مسلم یا سنی جو ہے, ٹھیک ہے, انڈیا میں بھی اس کی طرح ہی یعنی کہ چلے گی, رہا جاتا ہے ادھر کیا ان کا ماحول ہے. بہت عمدہ سوال ہے. نئی گورنمنٹ جو ادھر آئی ہے جی اس کے آنے سے جو نیوز آ رہی ہے کہ جو پیڑتے ہیں ان کو کافی یعنی کہنے کے پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں, تو وہاں پہ کیا یعنی کہنے کے صورتحال ہے. بہت شکریہ عمر, آپ نے ہمیں کال کی. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ. آپ واچ کرتے رہیے, ہم ابھی عرض کرتے ہیں. پہلے میں ایک وضاحت کروں گا, پھر مولانا کو میں ہینڈ اوور کروں گا, وہ انشاءاللہ جواب دیں گے. ایک تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں فاطمہ بہن نے اور عمر صاحب نے, یعنی ایک شیعہ بہن ایک سنی بھائی نے سوال یہ کیا ہے. پہلا سوال تو فاطمہ بہن کا تھا کہ کیا اتنی اچھی تقریروں کا اثر دہشت گردی کرنے والوں پہ نہیں ہوتا. مولانا نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ جب امام حسین کا آخری خطبہ ہی یہ ہو کہ میری باتوں کا تم پہ اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ لأن بطونکم ملئت بالحرام, اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. حرام خوروں پہ
इमाम का असर नहीं होता तो गुलामों का क्या असर हो। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरी गुजारिश ये है कि हमें इन दोनों की कॉल से एक बात भी याद आ गई कि अभी हमारे 23 लोग शहीद हुए हैं तफ्तान बॉर्डर पर, जी जो ज़ियारात खुरासान और कुम से वापस आ रहे थे। होटलों में घुसकर भी लोगों को मारा गया है। और अभी कल एक बहुत बड़ा जो अलमिया और सानिया हुआ कराची एयरपोर्ट पर, जहाँ तालिबान और अलकायदा के गुंडे घुस गए और उन्होंने 20 बेगुनाहों को शहीद कर दिया। अगरचे 10 खुद भी हलाक हो गए, जहन्नम रसीद हो गए। तो ये तालिबान और अलकायदा के गुमाश्ते उधर तफ्तान बॉर्डर पर शिया यानी अली को कत्ल कर रहे हैं, इधर कराची में शिया सुन्नी की कोई कैद नहीं, मरने वालों में सुन्नी भी हैं शिया भी हैं, बेशक उनको कत्ल कर रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि शाम के अंदर जो हालात हो रहे हैं, इराक़ में जो हालात हो रहे हैं, बहरैन में जो हालात हो रहे हैं, सऊदी अरब में जो हालात हो रहे हैं, हम इनको हालात को भी देख रहे हैं। सामर्रा में अभी चंद दिन पहले चारों तरफ से बाकायदा घेर लिया हमारे आइम्मा के दोनों इमामों के रोज़ों को, और वहाँ पर काफ़ी लोग शहीद हुए हैं। तो ये सारी साजिशें असल में उनकी हैं जो यजीदियत की प्रमोशन चाहते हैं। जी ये दरअसल ना तो ये मुसलमान है ना सुन्नी है, कोई सुन्नी ये नहीं चाहेगा, वरना कोई सुन्नी मुझे लाइव मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ कॉल करके कह दे कि यजीद को वो सुन्नी मानता है, लश्कर यजीद को सुन्नी मानता है, या सुसाइडर्स को क्या वो सुन्नी मानते हैं? सुन्नी तो एक शरीफ कौम का नाम है, ये तो बदनाम कर रहे हैं। और मौलाना बेहतर अंदाज में बताएंगे, जो उमर साहब ने भी सवाल किया कि इंडिया में ये चीज़ नहीं है। मैं खुद जा चुका हूँ इंडिया में, अकेला मैंने 3-3, 4-4 मील सुबह के वक्त बॉम्बे में वॉक की है। पाकिस्तान में मैं वॉक नहीं कर सकता हूँ, मुझे गोली लग जाएगी। बॉम्बे में मैं वॉक कर सकता हूँ, हैदराबाद में मैं 6 दिन मुसलसल सुबह 4 मील वॉक करता रहा हूँ। माजिद आगा इस बात के गवाह हैं, नाश्ते से पहले मैं वॉक करके आता था। तो मैं मौलाना ज़मीरुल हसन साहब की वजह से, जो हमारे पास आज मेहमान आलिम हैं तशरीफ़ लाए हुए हैं, इनसे गुजारिश करूँगा कि वो इंडिया के बारे में बताएं कि वहाँ पर मुसलमान कैसे सर्वाइव कर रहे हैं और शिया सुन्नी का वहाँ पर इत्तेहाद कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे बिरादर अजीज़ जनाब उमर साहब ने जो सवाल किया है, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अगर आप तशरीफ़ लाएँ और देखें और अगर तहक़ीक़ात भी करेंगे तो आपको ज़्यादातर यही मिलेगा कि अक्सर प्रोग्राम सुन्नी और शिया दोनों भाई मिलकर अंजाम देते हैं और मिलजुल कर जी रहे हैं। मैं जिस शहर में हूँ, शहर बनारस, उस शहर बनारस के अंदर भी जो हौज़ात इल्मिया हैं उनमें आपस में एक दूसरे से राबिता है। चुनांचे कोई प्रोग्राम हमारा होता है तो मौलाना मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब, मौलाना गुलाम यासिन साहब, इस तरीके के जितने अफराद हैं जो सरकर्दा हैं, ये सब हमारे प्रोग्राम में आते हैं, हमें अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं, हम वहाँ जाते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि इस तरीके का कोई शदीद इख्तलाफ हो, नज़रियाती इख्तलाफ हो अपनी जगह पर, और ये बरहक है, होता भी रहता है। जब दो भाइयों में नज़रियाती इख्तलाफ होता है तो ये तो मसलक का मामला है, तो नज़रियाती इख्तलाफ अपनी जगह है। असल में मसला ये है कि हम अगर एक आइन और एक मसलक के हम कायल हैं तो हमें उस आइन और मसलक के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए, और कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। पाकिस्तान में पता नहीं किसकी नज़र लगी हुई है, बहरहाल मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार वहाँ के भी इन तासुबात को बरतरफ करे और सुन्नी शिया ये सब मिल करके आपस में एक चीज़ सोचें कि हमको मज़हब इस्लाम को फ़रोग़ देना है और इसके लिए काम करना है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, अगर आप जामिया जवादिया की या अल जवाद की माली मदद भी करना चाहें तो आप यूँ कीजिए कि आपको नंबर हम बता देते हैं, बल्कि इसी प्रोग्राम में मैं कंट्रोल रूम वालों से गुजारिश करूंगा कि वो इस नंबर को नीचे टाइप कर दें, ताकि अगर ये रिपीट प्रोग्राम भी चले आपके लिए आसानी हो। आप मौलाना से या इनके वालिद साहब की वजह से रब्ता कर लें, इस कार खैर में आप शरीक हो सकते हैं। आपने भी सुना 12 असातिज़ा है, 40 तलबा हैं जिनको हॉस्टल भी दिया जाता है। अल जवाद का रिसाला है, उसका भी काफ़ी हसीना है, और इन्होंने माशाल्लाह नस्लन बाद नस्लन बहुत ही सादगी के साथ दीन की तबलीग की है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनसे जिक्र किया कि इनके वालिद साहब किबला ने मुझे आज से लगभग कोई 16 साल पहले बताया था कि
वो जिस मकान में रहते हैं उसकी छत टीन की है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि आज इन्होंने बताया है मुझे 16 साल के बाद कि आज भी इनके वालिद उसी मकान में रहते हैं जिसकी छत टीन की है। सादगी का अंदाज़ा लगाइए। 2 साल पहले शायद इनके वालिद ने एक कूलर जो इनके बहनोई ने उनको ख़रीद के दिया, कबूल किया है कि उनके कमरे में कूलर हो। देखिए क्या सादात किराम खिदमत कर रहे हैं सादगी के साथ, अपने आबा व अजदाद के मज़हब की तबलीग व तरवीज कर रहे हैं और शाकिर हैं, कभी कोई शिकवा नहीं। ज़ाहिर है इनके ख़ानदान के साथ मेरी बड़ी वाबस्तगी है। बिल्कुल इनके चचा मौलाना वली हसन साहब भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमा रहे हैं, क़ुम में आज भी हैं। तो पूरे ख़ानदान से मैंने देखा है कि बड़े शाकिर, साबिर, बड़े ही हंसमुख, कभी भी शिकायत न करने वाले। तो जो लोग यहाँ पर एयर कंडीशन में रह रहे हैं, मिलियनर हैं, लाखपति, करोड़पति हैं, कभी वो चाहें कि अहले बैत इस्मत व तहारत के ख़ानदान के सादात किराम की खिदमात में कुछ शेयर करना चाहें तो आप नंबर यहाँ पर हम मौलाना को अभी है। मैं एक बात अर्ज कर दूं कि ज़ातियात के लिए मैं किसी से भी तवक्को नहीं रखना और ना कहना चाहता कि वो हमारे शख्सी, लेकिन जो दीनी खिदमात हैं, मसलन किताबों की इशाअत है, तुल्लाब का खर्च है, इस तरीके के उसमें अगर ताउन कोई करना चाहता है तो बिस्मिल्लाह कर सकता है। मुझे उसमें बहुत शुक्रिया। मैंने भी यही अर्ज़ किया कि अगर हौज़े के लिए आप मदद करना चाहें या अलजवात के लिए या कुतुब जैसे फरमाया, अगर आप मदद करना चाहें, मजालिस होती हैं वहाँ पर, वो आप स्पॉन्सर करना चाहें तो हम नंबर नीचे अभी लिख देते हैं, मौलाना फरमाएंगे तो हम नंबर नीचे लिख देंगे हमारे कंट्रोल रूम वाले, ताकि हम चाहते हैं कि ये सिलसिला कोई अगर साहब चाहें इस प्रोग्राम से इम्प्रेस होकर कि वो ये खिदमत दीनी करना चाहें तो ज़रूर आप रब्ता करें, ताकि जामिया हौज़ा इल्मिया जवादिया या महानामा अलजवाद की दीनी खिदमत आपकी माली मुआवनत से हो सके। अभी हम नंबर आपको दिए जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, आप ज़रा नोट फरमा लीजिए। मैं बोल भी दूंगा और इंशाअल्लाह हमारे रईस साहब और हुसैन रज़ा दोनों जो इन ट्रांसमिशंस को दुनिया में भेज रहे हैं अभी टाइप भी कर देंगे। मैं इन दोनों के लिए दुआ गो भी हूँ और माजिद आगा के लिए, मौलाना ज़मीरुल हसन साहब किबला के लिए भी अल्लाह ताला इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करे, क्योंकि मौलाना को कहीं तशरीफ़ ले जाना है, लिहाजा हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है कि ज़्यादा हम इनको होल्ड कर सकें। अलबत्ता ये टेलीफोन नंबर जो हैं, जामिउल उलूम जवादिया अरबी कॉलेज, ये पूरा नाम है जामिया जवादिया का, जो मशहूर जवादिया है। वहाँ पर 2 मदरसे हैं, जवादिया और ईमानिया। ईमानिया भी मेरे एक बुज़ुर्ग दोस्त थे मौलाना हुसैनी साहब, अहमद हसन हुसैनी साहब, बल्कि मुझे याद है उनको वीज़ा चाहिए था तो मुझसे कहने लगे कि आगा साहब ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है बड़ी सख्त है, ये किसी को वीज़ा नहीं देती, तो मेरा वीज़ा जो है वो मुमकिन नहीं रहा कि आइंदा मुझे वीज़ा मिले। कराची में मुझे मिलने आए तो मैंने उनसे कहा कि आगा साहब आपका ऐसा वीज़ा लगवा के दूंगा कि इंशाअल्लाह मरने के बाद भी वीज़ा बाकी रहेगा। उनको वीज़ा लगवा के दिया, मरने के बाद भी वीज़ा बाकी रहा। तो बड़े नेक आलिम थे वो, हमारे बुज़ुर्ग थे। ज़ाहिर है उनके बेटे ज़फ़र हुसैनी साहब, मौलाना ज़फ़र हुसैनी हमारे दोस्तों में, अल्लाह ताला। मौलाना ज़फ़र हुसैन साहब मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैनी साहब के बेटे हैं। सैयद मोहम्मद, ये उन्हीं की बात है जी हाँ, सैयद मोहम्मद साहब, अहमद हसन साहब, हाँ अहमद हसन तो उनके भांजे थे शायद। जी जी जी, मौलाना क्या फरमाया? अहमद हसन साहब, नहीं दूसरे मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैनी, जी हाँ उन्हीं की। मैं हाँ ज़रा माजरत चाहता हूँ, नाम में इश्तिबा हो गया। जी हाँ, वो मुझे तशरीफ़ लाए मिलने, बुज़ुर्ग आदमी थे मगर क्या तवाज़ु था। और इनके वालिद साहब किबला को तो खैर मैंने 16 साल कबल कहा था कि आगा ज़मीरुल हसन को भेजें, वो उन्होंने 16 साल के बाद भेजा है। मौलाना सैयद मोहम्मद साहब मेरे जद्द अमजद के शागिर्द, माशाअल्लाह। मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैनी साहब जो खुद एक बड़े जय्यद आलिम दीन थे, फरमा रहे हैं कि मेरे जद्द अमजद जो आयतुल्लाह ज़फ़रुल हसन साहब पढ़ा उन्होंने, माशाअल्लाह, हौज़े में हज़ात में नहीं गए, बल्कि बर्रे सगीर में अगर ज़फ़रुल मिल्लत कोई नाम आप सुने तो वो इनके जद्द अमजद हैं, आयतुल्लाह सैयद ज़फ़रुल हसन साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह, जो बड़े साहिब करामात थे। कल इंशाअल्लाह फिर कोशिश करूँगा कि मैं, आज भी बहुत दूर से हाज़िर हुआ हूँ, मैं कुछ एक नौकरी करता हूँ तो आज पहला दिन था, इत्तेफाक से बड़े अरसे के बाद दोबारा शुरू की है, तो आज वहाँ से मजदूरी करके नौकरी करके इंशाअल्लाह कल भी कोशिश करूँगा कि मैं, आप अगर टाइम दें तो ज़रूर, बल्कि उनकी जो करामात थोड़ी बहुत मुझे याद है
मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहली मजलिस जो मैंने पढ़ी थी किबला की, उसमें मैंने बयान भी की थी कि उनको एक ख़त भी वसूल हुआ था, एक ख़त आया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुतहर से, एक ख़त आया था इनकी जद्दा के पास, इनकी दादी के पास। यानी आयतुल्लाह ज़फ़र हसन एक वलीउल्लाह थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और इनका ख़ानदान बेहद। मेरे भाई हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अलहाज सैयद अली हैदर आबदी साहब किबला, जो हमारे माजिद आगा के भी बड़े ख़ास जिगर जान हैं, बहुत ही करीबी इनके दोस्त हैं, उन्होंने आज मुझे ख़ास तौर पर कॉल करके मुझसे कहा कि आपने आगा ज़मीरुल हसन का तारुफ़ बहुत अच्छा कराना है, क्योंकि इनके ख़ानदान की बड़ी खिदमत है। मैंने कहा भी आगा जितना मुझे मालूम है मैं ज़रूर कराऊँगा, डट के कराऊँगा। अब हो सकता है मैं हक़ अदा कर सका हूँ या नहीं, बहरहाल मैं माज़रत चाहता हूँ अगर कोई कोताही हो गई हो। इनके ख़ानदान की खिदमत को मैं सलाम करता हूँ। आप ज़रा फ़ोन नंबर नोट फरमा लीजिए, तौफीक है, और ये हमारे कंट्रोल रूम वाले ज़रा नोट लिख भी दें, ताकि इंशाअल्लाह इस खिदमत को हमेशा के लिए सदका जारिया के तौर पर पेश किया जाए। जामिउल उलूम जवादिया अरबी कॉलेज, इस कॉलेज का नाम है, मोबाइल नंबर है, और ये दोनों मोबाइल नंबर हैं। अगर आप यहाँ से मिलाएंगे तो यूँ मिलाना होगा 011, आगे मिलाना होगा 91, ये मिलाने के बाद नंबर मिलाएंगे 945127778 एक मरतबा फिर सुन लीजिए, 011919451277786। ये मुझे हिफ्ज़ भी हो गया, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ भी हो गया है। दूसरा नंबर है 01191, फिर नंबर होगा 9451439714। एक दफ़ा फिर 011919451439714। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, आप क़ुर्बतन इलल्लाह इस इदारे की मदद फरमा सकते हैं, और मौलाना ज़मीरुल हसन साहब इस बात के गवाह हैं कि मैंने अपनी हौज़ा इल्मिया की ज़िंदगी में पाकिस्तानी तलबा से ज़्यादा हिंदुस्तानी तलबा की खिदमत की है, और अल्लाह के फजल व करम से हिंदुस्तानी तलबा को मेरे ऊपर एक फ़ख्र होता था, और एक ढारस थी, एक उम्मीद थी। अल्लाह ने इज़्ज़त भी बहुत दी थी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं बड़ा खुश हूँ कि आज मौलाना ज़मीरुल हसन रिज़वी साहब को आज देख रहा हूँ कि वो एक बेहतरीन आलिम के तौर पर माशाअल्लाह बरसा बरस से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनके लिए ढेर सारी दुआओं के साथ, इनके वालिद साहब की तूल उम्र की दुआ के साथ, इनके अहल खाना, इनके बच्चों, इनके बहन भाइयों, इनकी वालदा माजिदा, इनके चचाओं, इनके आइज़ व अक़रबा, इनके सारे ख़ानदान के लिए ढेर सारी दुआओं के साथ, इनके जद्द अमजद जद्द आला ज़फ़रुल मिल्लत साहब किबला के दर्जात की बुलंदी के साथ, आगा माजिद हुसैन मूसवी साहब की तूल उम्र की दुआ के साथ, अपने गुनाहों की माफ़ी की दुआ के साथ, अपने बेटे हुसैन रज़ा के लिए कामयाबी और कामरानी की दुआ के साथ, और बेटे रईस के लिए कामयाबी और कामरानी की दुआ के साथ, आपका मेज़बान अलमहदी टीवी के न्यू जर्सी स्टूडियो से ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ जो दोबारा कहूँगा, हमारे हाजी मंजूर साहब जो हमारे इंचार्ज हैं, हम सब के ये बॉस हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। इन्होंने बुरे हालात में हमारा साथ दिया है, अल्लाह ताला इनको बुरे हालात से महफूज रखे। मौलाना वसीम अब्बास साहब के लिए भी मैं दुआ गो हूँ, उन्होंने भी बहुत हमारी खिदमत की है, अल्लाह ताला उन्हें खुश व खुर्रम रखे, और उनको आज एक नया जाम मिला है तो अल्लाह ताला उन्हें कामयाब व कामरान फरमाए। इत्तेफाक से आज उस्ताद शागिर्द दोनों को ही जाब मिल गया, आज उन्होंने भी जाब शुरू किया, आज मैंने भी जाब शुरू किया, पहला जाब मैं भी करके आया हूँ। तो मैं बहुत दुआगो हूँ सबके लिए, ख़ास तौर पे अपने भाई मौलाना अली हैदर आबदी साहब के फ़र्जंदान अली, डॉक्टर अली आबदी का और वकील खादिम आबदी का बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ
कि जिन्होंने ये इम्कान पैदा किया कि ख़ास तौर पे मैं भैया मौलाना आबदी साहब किबला की बेगम साहबा अपनी बहन का भाभी का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन सब ने ये मौका फराहम किया, रियाज का भी, रियाज आबदी का भी, कि मौलाना यहाँ तशरीफ़ ला सके। उसूलन तो मौलाना को हमें मेहमान रखना चाहिए था, मगर ये कि उन्होंने सबकत कर ली, अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। बहरहाल हमारे इदारे के दरवाज़े, हमारे घर के दरवाज़े मौलाना ज़मीरुल हसन साहब क़िबला रिज़वी और तमाम हिंदुस्तान के तलबा अजीज़ों के लिए खुले हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ, अगरचे कॉल्स अभी भी आ रही है और इस वक्त हमारे साथ देखिए डॉक्टर अली की अल्लाह ज़िंदगी दराज करे। अभी मैंने डॉक्टर अली का नाम लिया, अली आबदी का, और उनकी कॉल भी आ गई। माशाल्लाह अली आप आ जाइए, मौलाना तैयार हैं, प्रोग्राम हमारा इख्तिताम पजीर हो गया है, मौलाना को आप पिक कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत इज़्ज़त दे, आपके वालिदैन को, आपके बहन भाइयों को अल्लाह सबको सलामत रखे और आपको एक बेहतरीन फिजिशियन बनाए, बेहतरीन डॉक्टर बनाए, और अल्लाह ताला हमारी कौम को भी तौफीक दे जामिया जवादिया जैसे और हौज़ा इल्मिया अल महदी जैसे जो गरीब प्रोजेक्ट्स हैं इनके लिए मदद करें। अल महदी टीवी जैसे गरीब प्रोजेक्ट की मदद करें। जैसे आगा ने फरमाया, मैं भी कभी ज़िंदगी में अपनी ज़ात के लिए नहीं मांगा, कभी मांगूंगा भी नहीं, इंशाअल्लाह मेहनत मजदूरी की है, कुम में रहा हूँ, वहाँ नहीं मांगा तो यहाँ क्या मांगूंगा, वहाँ पर भी दामन साफ लेकर आया हूँ, इंशाअल्लाह यहाँ से भी दामन साफ लेके जाऊँगा। मगर प्रोजेक्ट के लिए, अल महदी टीवी के लिए भी आपकी मुआवनत चाहिए, जामिया जवादिया के लिए भी, अल जवाद के लिए भी, हौज़ा इल्मिया अल महदी के लिए भी मुआवनत चाहिए। मुआवनत कीजिए, सदका जारिया में शिरकत फरमाइए। माजिद आगा कुछ कहना चाहेंगे? माशाअल्लाह जो है मौलाना साहब के इदारे के लिए गुलाम एरीन नारे हैदरी मीडिया सेंटर के तरफ से हज़रत अली के नाम से 110-14 माशाअल्लाह बहुत अच्छी, मैं खिदमत करूँगा। बहुत अच्छी। नारे हैदरी मीडिया सेंटर के डायरेक्टर जनाब अलहाज माजिद हुसैन मूसवी हैदराबादी, नारे वाले आगा, अली मंजिल वाले और हैदराबाद में पत्थर के मकान वाले, बहुत अहले खैर हैं, हमारे भी मुआविन हैं। मेहरबानी फरमाते हैं, कम अज़ कम औसत में $300-350 हमारे हौज़ा इल्मिया की भी, अल कुरान अकेडमी की भी मदद फरमाते हैं। और इन्होंने अभी $110 मौला अली अलैहिस्सलाम के पाक अदद के मुताबिक जवादिया के लिए, मौलाना के लिए नहीं, मौलाना की ज़ात के लिए, हम हमारे शागिर्द, देखा है आपने कितने गयूर हैं, अल्लाह के फजल करम से हम भूखे मर जाएंगे, किसी से दस्ते सवाल दराज नहीं करेंगे। आप जवादिया की मदद कीजिए, ये मेरी भी मदद है, समझिए, ये हौज़ा इल्मिया कौम की भी मदद है। इन सादात किराम ने मुश्किल हालात में खिदमत की है। इनके दादा उस वक्त इज्तिहाद पर पहुँचे हैं कि जब मौलाना बनना मुश्किल था। हम तो इन वादियों को अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस करके आज देख रहे हैं कि इन डेकेड्स की स्टडी के पास इज्तिहाद कितनी कठिन मंजिल का नाम है। बहरहाल बहुत शुक्रगुजार हूँ आज जिन्होंने हमें कॉल्स की, बहनों ने, भाइयों ने। अल महदी टीवी को वाच करते रहिए। थोड़ी ही देर के बाद मैं आपकी खिदमत में आमाल शाबान और लैलतुल बरात के ख़ास आमाल के साथ हाज़िरी देता हूँ। वाच करते रहें। चंद ही मिनट में एक वक्फे के बाद आपका ये खादिम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। मैं हुज्जतुल इस्लाम जनाब मौलाना का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जनाब सैयद ज़मीरुल हसन रिज़वी साहब का, माजिद आगा का, कि जो यहाँ तशरीफ़ लाए और आज बेहतरीन प्रोग्राम हुआ है। सफ़ीर हौज़ा नंबर 7। कोशिश मेरी ये होगी कि कल फिर हम मौलाना को यहाँ ज़हमत दें, वो कुछ अपने जद्द अमजद के बारे में करामात का तज़किरा करें, कुछ अपने वालिद साहब क़िबला की कुतुब का तज़किरा करें, अपनी और अपने तीनों नस्लों की मजालिस के उन्वानात का जिक्र करें, अपने चचा मौलाना वलीउल हसन साहब की खिदमात का तज़किरा फरमाएँ, अपने भाइयों के बारे में कुछ हमें बनारस के बारे में बताएं, जहाँ हमने साधुओं के बारे में बड़ा सुना है, जहाँ हमने सुना है कि मुर्ताज़ीन वहाँ पर 6-6 महीने साल पानी में खड़े रहते हैं, वो रियाज़त करते हैं। तो हम तो मोहम्मद व आले मोहम्मद के मानने वाले हैं। इन्होंने तो उस फील्ड में रियाज़त की है, इनके पूरे ख़ानदान ने, कि जब इंसान विलायत सुगरा पर पहुँच जाता है। अल्लाह हमारे इन बरादर अजीज़ को और इनके वालिद साहब क़िबला को और इनके तमाम अज़्ज़ा व अक़रबा को
زندہ و سلامت رکھے. خدا حافظ و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.